شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بہن بھائی اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سجدہ، کہ سجدہ کسے اور کیوں ضروری ہے۔ اصل میں سجدے سے ہی سارا معاملہ بگڑا ہے، کیونکہ آسمان پر جب خدا نے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنی جو آتشی مخلوق ہے، جو نورانی مخلوق ہے، اس پر جب ظہور ہوا تو سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، لیکن ایک فرشتے نے انکار کیا، بلکہ سوال کیا، بلکہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں بھی تو ہوں جس کے سامنے یا جس کے ساتھ یا جس کے آگے یا جس کے متی لاکھوں فرشتے ہیں۔ اور اس فرشتے کا نام تھا عزازیل، جس کو عام زبان میں لوسیفر کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا نام لوسیفر نہیں ہے، لیکن اس کو غلط العام میں جو مثال دی گئی، اس مثال کو اس پر پکا کر دیا گیا۔ لوسیفر کا مطلب ہوتا ہے نور دینے والا، تو ابلیس تو نور نہیں دیتا۔ ابلیس بھی اس لیے کہا گیا اس کو کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے، تو کبھی جھوٹ نور نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کا نشان ہی گرے ہے یا بلیک ہے یا موت ہے۔ جھوٹ کو کبھی آپ کسی بھی رنگوں میں رنگ فرق نہیں دے سکتے، اسی لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر کالی چادر ڈالتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیر نگری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی جو ڈائریکشن ہے، اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو رنگوں کا تعین ہے، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے، کیونکہ رنگ بولتے ہیں۔ وہ جو نوروں کا باپ ہے، اس کا رنگ ہے سفید۔ نور جو ہے وہ سفید ہے، پھر اس کی آگے جو کرنیں نکلتی ہیں وہ فرق ہوتی جاتی ہے، اس میں 7 رنگ آ جاتے ہیں۔ خدا نور ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ خدا جب موسیٰ پر ظاہر ہوا تو نور سے ظاہر ہوا۔ جب بھی وہ کسی شخص پر ظاہر ہوا، پہلے نور ہوا، اور نور کے بعد اس نے کوئی فگر لی، کوئی شکل لی، انسانی روپ اختیار کیا، تاکہ انسان ڈر نہ جائے، انسان باغی نہ ہو جائے، انسان مر نہ جائے۔ اسی وجہ سے موسیٰ کو کہا بھی، خدا نے موسیٰ پر یہ بات واضح کر دی کہ اے موسیٰ، مجھے دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن موسیٰ نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور موسیٰ کے اصرار پر
खुदा ने उसको कहा कि तू इस चट्टान की आड़ में खड़ा हो जा। और फिर उसने पीछे से उसको देखा, जो इंसानी शक्ल थी, जिसका मतलब है कि अगर खुदा इंसान पर किसी जानवर के रूप में जाहिर होता तो इंसान जानवरों की पूजा करना शुरू हो जाता। अगर परिंदों के रूप में होता तो वो परिंदों की पूजा करते। इसलिए अशरफुल मखलूकात, जो तमाम मखलूकात से ज्यादा वैल्यू वाली, अहमियत वाली, खुदा की कुर्बत में रहने वाली, खुदा की खुशनुदी जिसमें है, वो इंसानी मखलूक है। इसलिए जब भी कोई फरिश्ता आता है और आके पैगाम देता है, इलाही पैगाम, जब कोई रसूल आता है, रसूल का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, पैगाम रिसा। जब कोई रसूल, कोई इंसान रसूल माना जाता है, उसका तकर्रर खुदा की तरफ से हो जाता है कि ये मेरा रसूल है, तो उस रसूल पर खुदा का रूह होता है और फिर वो रसूल खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन जो पैगाम उसके पास आता है वो पहले नूर के बाद वो नूर शक्ल इख्तियार करता है इंसान की, और वो इंसान फिर उस शख्स को, जिसे आप कोई भी नाम ले लें जो बाइबल के हैं या जो मुकद्दस कुतुब में नजर आते हैं, मूसा रसूल है, इब्राहिम रसूल है, को रसूल भी कहा जाता है, पैगंबर भी कहा जाता है, शागिर्द भी कहा जाता है, हिवारी भी कहा जाता है। तो उनको जो पैगाम मिलता है, वो जो रूह आता है, वो जो बदन इख्तियार करता है, वो हमेशा इंसानी बदन इख्तियार करता है, क्योंकि इंसान की कुर्बत में खुश होता है। और खुदा भी कहता है कि मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। खुदा ये भी कहता है आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। खुदा ये भी कहता है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। और आप अंदाजा करें कि जब कोई शख्स दिल से सजदे में बैठता है, कपड़ा बिछाता है, आप तजर्बा करके देखें, उसके अंदर ऐसी खुशी होती है, ऐसा सुकून होता है, ऐसा लिंक होता है कि वो समझता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐ मेरे खुदा मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे तेरी चाहत चाहिए। जैसे दाऊद कहता है ऐ खुदा ये महल, ये मनारे, ये चबारे, ये बादशाहत, ये फतह, ये सल्तनत, ये रोब, ये इख्तियार, जो कुछ भी है, इस सब से बढ़कर मुझे वो मौका, वो घड़ी, वो पल ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मैं तेरे कदमों में गुजारता। और फिर वो ये भी कहता है कि मुझसे तो वो चिड़िया, वो परिंदे ज्यादा खुश नसीब हैं जिन्होंने तेरे घर में घोंसले बनाए, जो तेरे घर में रहते हैं। फिर वो ये भी कहता है कि इस सारी शानो शौकत से बढ़कर मुझे जो अजीज है, काश तेरे घर की दरबानी मिल जाए, तेरे घर की चौकीदारी सब ओहदों से, सब वैल्यू वाले स्केल से ज्यादा बाबरकत है कि मैं तेरे घर का चौकीदार बन के रहूं। जो तेरे मुकद्दसीन, जो तेरे आबद, जो तेरे सजदा करने वाले आते हैं, मैं उनकी जूतियों की राखी करूं, मैं उनकी जूतियां सीधी करूं। मेरे अजीजों, बरकत अगर लेनी है, खुशी अगर लेनी है, सेहत अगर लेनी है, जिंदगी अगर लेनी है, दिल का इत्मीनान अगर लेना है, तो कपड़ा बिछा के, वुजू करके, स्नान करके, नहा के
ताजा दम होके कभी उसके हजूर झुक कर देखे, अपनी तवज्जो पूरी पूरी उसकी तरफ रखे। ये नहीं कि सजदे में हो तो दिमाग किसी मार्केट में हो, किसी काम पे हो, किसी के हसद में हो, किसी की कदूरत में हो, किसी लालच में हो, किसी की फिक्र में हो, किसी पर फरेफ्ता हो। इन सब चीजों को छोड़कर पौलुस कहता है, मैं अपने ख्यालों को कैद करके सलीब के नीचे लेके आता। इधर झुको, इधर सजदा करो। मेरा अपना भी तजर्बा है, जब सारे दरवाजे खिड़कियां ज़हन के बंद हो जाते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा होता है, और फिर पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर जाता है। जब तू होते और फिर मैं नहीं होता। जब भी तू कहा जाता है, और ये तुम लफ्ज जो है ये स्पेनिश में है, तुम का साथ तू है। जब ये एक हो जाते हैं फिर खुद खत्म हो जाता है, फिर मैं खत्म हो जाती है। जब तू होता है तो सब कुछ होता है, जब मैं होता हूं तो कुछ भी नहीं होता। इस बात को जरा मजे में लें, सोचें, होता क्या है जब दुआ का टाइम है, फिर किसी की कमर में दर्द है, किसी की पीठ पे दर्द है, कोई गद्दी ढूंढता है, मुझे गद्दी दे दो मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। कोई कहता है मुझे टेक लगानी है सोफे के साथ, मैं टेक लगा लूं। कोई कहता है मुझे कुर्सी पे बैठना है। टीवी घंटों आप बैठ के देखते हो, खाने के टेबल पे बैठे रहते हो, गप्पे हाँकना आसान है, ऐबजोई करना, ऐब गोई करना, ताना जनी करना बहुत आसान है। कभी इसके सजदे में भी जाके देखो, कभी इसके मजे में भी जाके देखो, कभी इसके असर में भी जाके देखो कि इसका असर क्या है। फिर खुद ही खत्म हो जाती है, मैं खत्म हो जाती है। इस वजह से जिन लोगों ने पहचान लिया उन्होंने सजदा किया। इब्राहिम ने सजदा किया, उसे बेटा मिल गया। मूसा ने सजदा किया, उसे एक कौम की लीडरशिप मिल गई। कोड़ियों ने सजदा किया, उनका कोड जाता रहा। जो जो सजदा करता है, बाइबल भरी पड़ी है कि इतने सजदे, इतना मसा, ऐसी फीलिंग, ऐसी लगन, ऐसा नशा जिसके बराबर कोई भी नहीं। तुमा को रवायत है कि नेजा लग गया। अब नेजा कैसे निकालें, और नेजा तो निकल गया, उसको एक तीर लगा हुआ था। अब तीर कैसे निकालें? नेजे का तो इलाज हो गया, लेकिन तीर निकलता नहीं था। किसी ने कहा कि जब ये दुआ करता है, जब ये सजदे में जाता है, तो उस वक्त आप तीर निकाल सकते हैं। और ये हकीकत में ऐसे ही हुआ कि इंडिया में आज भी ये रवायत कायम है कि अगर कोई सजदे में जाए और उसको बाहर की आवाजें आए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो फिर वो कोई सजदा नहीं। सजदा वही है जब तुम हो जाओ, जब मैं ना हो, सिर्फ तू है, सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे रब,
मेरे खालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे राज़क तू ही है, मैं कुछ भी नहीं। फिर देखो जिंदगी का क्या मजा है। फिर मांगना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो कर दो। फिर ये लफ्ज खत्म हो जाते हैं, फिर सिर्फ खामोशी हो जाती है, सिर्फ खामोशी। सर उसके कदमों में, हाथ जमीन पर, मुकम्मल सरेंडर। एक बड़ा ओहदेदार हो और जब वो घुटने टेके, हाथ जमीन पर रखे, माथा जमीन पर रखे, दिल भी उंडेला गया, सर भी झुका दिया गया, हाथ भी खाली रख दिए गए, घुटने भी टेक दिए गए, बोसा जमीन का हो गया, तो पता चल गया कि मैं खाक हूं, मेरे मालिक मैं ये हूं, और तूने मुझको अपनी लगन लगाई। ये मेरी क्या औकात है, ये मेरी क्या बसात है, ये मेरा क्या मुझ में है कि मैं तुझ नूरों के बाप को सजदा करूं। और तेरा दिल जो नूरों का बाप है, उसका दिल इंसान के सजदे में लगा है। खुदा खुश होता है क्योंकि ये खुदा की खुदाई है, ये खुदा की पर्सनैलिटी है। वो कहता है इब्रानियों के खत में पहले बाब की 6 आयत में, जब वो बेटे को दुनिया में लाता है, यानी कि अपने रूप को जब दुनिया में लाता है, जब उसका रूप दुनिया में आ जाता है, तो फिर चाहता है दुनिया वाले उस रूप को सजदा करें। और वो रूप क्या है? वो उसका रूप उसके लोगों में है, उसके मुकद्दसीन में है। किसी इंसान को सजदा करना रवा नहीं महज सवाए एक को, और वो खुदा है। वो ही सजदे के लायक है। इंसान की आप इज्जत कर सकते हैं, इंसान को सलाम कह सकते हैं, क्योंकि सलाम का मतलब है मैं तेरे लिए सलामती चाहता हूं। अबरानी में यहूदी जो है वो कहते हैं शलूम, और आगे से दूसरा शख्स कहता है शलूम अलैकुम, मैं भी तेरे लिए सलामती चाहता हूं, जिससे ये लफ्ज निकला है सलाम अलैकुम। सलाम उसका जवाब है अलैकुम, सलाम अलैकुम, मैं भी तेरी सलामती चाहता हूं। तो वो जो कादरे मुतलक है, उसके हजूर सलामती का जो मंबा है वो सजदा है। अगर आप सजदे में रहेंगे, आप तजर्बा कर लें। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर शेर आ जाए या कोई रीछ आ जाए या कोई भी खतरनाक जानवर आ जाए तो बस आप झुक जाओ। तो जानवर जान जाता है कि जिसके आगे ये झुका है, अब मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता। जिसके आगे झुक गया ये, शेर की शाजोरी खत्म हो जाती है। हर जानवर का कहर, हर जानवर की धाड़, हर जानवर का जहर खत्म हो जाता है। नहीं खत्म होता तो उस अबलीस का खत्म नहीं होता, और उस अबलीस का पैरोकार का नहीं खत्म होता। भले आप उसको सजदा करो, हाथ जोड़ो, माफिया मांगो, वो नहीं बदलता, क्योंकि वो अबलीस का फरजांद है, उसके अंदर अबलीस रहता है। और जो खुदा का बंदा है, जब वो जमीन पर झुक जाता है, भले वो किसी हालत में भी हो, तो उसके आगे कायनात झुक जाती है, क्योंकि वो जिसको सजदा करता है वो उसके साथ होता है जो उसे प्यार करता है। खुदा आपको इन बातों को समझने की तौफीक दे और सजदे की तौफीक दे। नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को समझे, क्योंकि वो सजदे में रहते थे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका।
وہ ہمیشہ نند میں تھے